Hello students. In today's lecture, we will discuss about rotational dynamics. Dynamics का मीनिंग आपको पता है, that is moving. Rotational motion. जैसे आपको मोशन की डेफिनेशन पता है. What is definition of motion? That is the change in position of the object with respect to time and surrounding. जैसे अगर ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन चेंज करता है along the circumference of circle, so this is the type of circular motion. If object changes its position along the parabolic path, this is projectile motion. And we know that if object changes its position along a same straight line, this is translational or linear motion. Okay. Now in rotational motion, अब rotational motion में क्या होता है कि if object starts rotating, we know that body possesses number of particles and every particles revolves around a point. Okay, so in this case क्या होता है कि हर एक particle performs circular motion in a circle of different radii, and centers of all circles lies along a same straight line that is known as axis of rotation. तो यहाँ पर rotational motion की definition कैसे होगी देखिए. जैसे यहाँ पर a body is said to be in rotational motion if every particle of body moves in circle and centers of all circle lies on the axis of rotation. That is known as rotational motion. Right students? अब जैसे rotational motion के कुछ examples. For example, opening and closing of door. जैसे यहाँ पर ये axis of rotation है. ये क्या यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे हम डोर को ओपन या क्लोज करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट पार्टिकल्स परफॉर्म सर्कुलर मोशन. जैसे रोटेशन ऑफ द डोर, अगर इसका टॉप व्यू हम देखते हैं यहाँ पर टॉप व्यू. ओके, सो दिस इज द रोटेटिंग डोर. सपोज यहाँ पर दो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, ए पॉइंट और यहाँ पर बी पॉइंट. ठीक है, एंड दे आर सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस r1 एंड r2 known as moment arm. Okay, this is center O. So AO and BO are perpendicular distances of these two particles from the axis of rotation. That is known as moment arm. अब देखिए और एक इंटरेस्टिंग बात, ये दोनों पार्टिकल्स A और B परफॉर्म सर्कुलर मोशन. राइट, अब दोनों का सेंटर एक ही है. जैसे पार्टिकल A एंड पार्टिकल B बोथ कवर्स सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द सेम टाइम. जैसे ए पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई या फिर 360 डिग्री एंगल कवर करता है. बी पार्टिकल भी उसी वक्त 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन एंगल डिस्क्राइब करता है. मतलब दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है. सो बोथ पार्टिकल्स पजेस सेम एंगुलर स्पीड, लेकिन उनकी जो लीनियर स्पीड है वो अलग होती है. तो देखते हैं कैसे. हमें पता है v is equal to r omega, that is relation between linear speed and angular speed. Right? अब देखते हैं a पार्टिकल की लीनियर स्पीड, ये टेंजेंशियल होती है यहाँ पर v1. So v1 is equal to r1 omega. v1 is equal to r1 omega. Similarly, b पार्टिकल की टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी v2. v2 is equal to r2 omega. यहाँ पर देखिए आप दोनों पार्टिकल की एंगुलर स्पीड सेम है. although their angular speeds are same, but because of different radii their linear speeds are different. So एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है रोटेशनल मोशन का, जिसमें क्या होता है कि in uniform rotational motion all particles perform same angular speed but different linear speeds. एक एग्जांपल हो गया. ठीक है, जैसे और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं. ये तो रोटेशन ऑफ डोर हो गया. ओके, देन रोटेशन ऑफ द सीलिंग फैन, car steering wheel, and rotation of the
अर्थ। ये कुछ रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे रोटेटिंग फैन, ये रिजिड बॉडी है एंड दैट different blades of the fan revolves around the axis of rotation. So this is rigid body, okay, rotating ceiling fan. जैसे और एक देखा था हमने steering wheel, rotation of earth, that can be considered rigid body. Another एक example यहाँ पर, that is spinning top. Okay, now this spinning top revolves like that and let axis of rotation passing through the center. अब ये axis of rotation है यहाँ पर, this is axis of rotation, axis of rotation, ठीक है। तो different particles of the top revolves in circles and centers of all circles lies along the same line, that is known as axis of rotation. जैसे देखिए यहाँ पर top is made of n number of particles, जैसे यहाँ पर m1 पार्टिकल है, उसका डिस्टेंस है r1। सेकंड पार्टिकल कंसीडर करते हैं m2, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा r2। थर्ड पार्टिकल m3, जिसका डिस्टेंस है r3, ठीक है। तो ऐसे हम nth पार्टिकल तक कंसीडर कर सकते हैं जिसका डिस्टेंस होगा rn। नाउ ऑल दिस पार्टिकल्स रिवॉल्व्स इन डिफरेंट सर्कल्स। अब एवरी सर्कल जिस उनके सेंटर जो होंगे, that centers lies along a same straight line, that is known as axis of rotation. So this is the meaning of rotational motion. In rotational motion, moment of inertia is very important physical quantity. अब इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। जैसे आपको inertia का मीनिंग क्लियर है, क्या होता है inertia? It is the tendency of body to remain in the state of rest or of uniform translational motion, ये हमें पता है। वैसे rotational motion में क्या होता है, वैसे एक physical quantity होती है, तो that is known as moment of inertia. That means the tendency of the body to remain in the state of rest or of uniform rotational motion is known as moment of inertia. ओके, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो इसलिए फिर ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। आपको पता है जैसे ट्रांसलेशनल मोशन, इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये तो पता है ना, ये सब आपको सर्कुलर मोशन में हुआ है। नो, जैसे लीनियर स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन व्हिच इज रिसेम्बलेंस, मतलब सिमिलर टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन। लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और कुछ बातें हमें पता है जैसे कि फोर्स, ओके, सिमिलर क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन कौन से, टॉर्क, टो, जैसे। और लीनियर मोमेंटम p, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन इज एंगुलर मोमेंटम डिनोटेड बाय l। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे F इज इक्वल टू फोर्स इक्वेशन, सबको पता है फोर्स इक्वेशन, F इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ फोर्स इज सिमिलर टू टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क का फार्मूला एक पता है हमें, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। अब इसका डेरिवेशन प्रूफ आपको होने वाला है, ठीक है। टॉर्क टो इज इक्वल टू I अल्फा। अब यहां पर देखिए, फोर्स इज सिमिलर टू टॉर्क, लीनियर एक्सेलरेशन इज सिमिलर टू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। वैसे यहाँ पर m must be similar to the physical quantity I in a rotational motion। इसका मीनिंग क्या होता है कि
mass a physical quantity in translational motion is similar to that of the physical quantity, moment of inertia, I stand for here moment of inertia in rotational motion. और एक एग्जांपल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी in translational motion, we know that half mv square. वैसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर एक फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर यम मास, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी लीनियर स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन. मतलब यहाँ पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड मास यम, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज रिसेम्बलेंस है, सिमिलर है. एक का फिजिकल सिग्निफिकेंस ट्रांसलेशनल मोशन में आता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन. जैसे लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, राइट. वैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला यहाँ पर है I इनटू ओमेगा. तो ये तीनों से आपको ये इनिशियली पॉइंट तो क्लियर होता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया in rotational motion is similar to the physical quantity mass in translational motion. ठीक है. जैसे टॉर्क, टॉर्क का मीनिंग क्या होता है? टॉर्क दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट, इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ. जैसे फॉर्मूला पता है आपको, टो इज इक्वल टू एफ इनटू आर, राइट. What is R? That is the moment arm. See, consider there is a rigid body and axis of rotation passing through this point O. यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करेंगे F. This is the direction of applying force and let this point is A. If we join OA, this perpendicular distance OA is R. That is called moment arm. So magnitude of force acting at point into perpendicular distance of this point from the axis of rotation known as moment arm, that gives torque. Tau is equal to F into R. This is moment of force. Torque is also known as moment of force, that is force into moment arm. वैसे angular momentum का फॉर्मूला क्या होता है? Momentum into moment arm. जैसे L is equal to momentum that is linear momentum P into moment arm R, ये फॉर्मूला है. Similarly, moment of inertia can be written as inertia into moment arm, right. Inertia mainly depends upon the mass of the object, so inertia can be written as moment of mass into moment arm. अब moment of mass का फॉर्मूला mass into moment arm होता है, ये हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है, राइट. वो फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पर हम यूज करते हैं, m into r, दिस मोमेंटम r, दैट इज I is equal to mr स्क्वायर. ये फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिकल क्वांटिटी इन रोटेशनल मोशन, इनर्शिया इज फिजिकल क्वांटिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन. तो फिर से एक बार देखिए यहाँ पर इनर्शिया का मतलब क्या होता है? The tendency of body to remain in the state of rest or of uniform translational motion, right. वैसे moment of inertia ये physical quantity rotational motion से related है, जिसमें body performs rotational motion, ठीक है. तो उसकी जो property होती है to oppose the change of state or of uniform rotational motion is known as moment of inertia. So इसकी definition देखिए कैसे होगी. Moment of inertia is defined as the tendency of body to remain in the state of rest or of uniform rotational motion. तो ये moment of inertia यहाँ पर, उसका फॉर्मूला I is equal to mr square, ठीक है. moment of inertia डिफरेंट केसेस के लिए हम डिस्कस करते हैं. जैसे नंबर 1, for a single particle, okay, consider a single particle of mass m and it is situated at distance r from the axis of rotation.
let this particle revolves around this axis of rotation. This is single particle system. Now moment of inertia का formula अभी आपने देखा है कि m r square. What is m? Mass of the particle. And moment arm, that is perpendicular distance from axis of rotation, r square. This is basic formula for moment of inertia. SI unit of, this is SI unit of moment of inertia. See, m मतलब mass, that is kilogram. Perpendicular distance, that is meter square. So kilogram meter square is the SI unit of moment of inertia. Now dimensions. Mass, that is m1. L distance, उसका पावर कितना है 2, और यहाँ पर टाइम नहीं है, मतलब उसका पावर होगा 0. m1 l2 t0 is the dimensions of moment of inertia. Now for n particle system, जैसे इसमें सेकंड कंडीशन देखिए, for a particle of n particles with non-uniform distribution of mass. अब non-uniform distribution of mass मतलब क्या होता है कि we know that any rigid body is made of n number of particles. अगर उसमें हर एक पार्टिकल का मास डिफरेंट होगा, so that is non-uniform distribution of mass. तो ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं. I is equal to summation mi ri square where I is equal to 1 to n. ठीक है. Then इसका मीनिंग क्या होगा कि suppose that body, rigid body consists of n particle, तो हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. जैसे m1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर. लेट सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस r2, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर. ऐसे करते करते अगर हम nth पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और सबकी एडिशन करते हैं, तो दैट गिव्स I is equal to summation mi ri square where I is equal to 1 to n. ठीक है. थर्ड कंडीशन, for a body of n particles with uniform distribution of mass. अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब जिसमें हर एक पार्टिकल का मास सेम होता है. लेट इट इज dm. ओके, तो ऐसे कंडीशन में फिर I is equal to इंटीग्रेशन फार्मूला यूज करना है हमें. दैट समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन. I is equal to integration r square into dm. So these are the formulas for moment of inertia. Now ये moment of inertia physical quantity किस पर डिपेंड करती है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी. जैसे फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, I is equal to mr square. तो इससे पता चलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और मोमेंट आर्म पर डिपेंड करता है. तो पहला फैक्टर यहाँ पर, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉडी. I and m आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे मास इंक्रीज होगा बॉडी का, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा. Then, so directly proportional to mass of body. Distribution of mass about axis of rotation. Distribution of mass about axis of rotation. जैसे अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक साइड की तरफ बढ़ता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर बढ़ेगा, बिकॉज मास डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा. जैसे if this particle, suppose यहाँ पर axis of rotation है, ठीक है, this is axis of rotation. if particle initially यहाँ पर है, उसका distance अगर हम बढ़ाते हैं यहाँ तक, मतलब क्या हो गया कि axis of rotation से mass का distribution बढ़ गया यहाँ पर. so it depends upon, जैसे distance बढ़ेगा moment of inertia again increase होगा. so it depends upon the distribution of mass about the axis of rotation. Position of axis of rotation and shape and size of the body. अभी आगे कुछ आर्टिकल में आपको क्लियर हो जाएगा. जैसे यूनिफॉर्म रॉड, अगर यूनिफॉर्म रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रॉड होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाय 12. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड लाइक दिस, ओके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से होता है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है अगर पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है. वैसे शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल
नेक्स्ट हम एक टेबल अभी देखने वाले हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग उसका फॉर्मूला होता है mr²। ओके, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क, अगर उस डिस्क और रिंग दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है, तो फॉर्मूला अलग अलग होता है। जैसे डिस्क का फॉर्मूला होता है mr²/2। तो ये इट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन डिनोटेड बाय k? रेडियस ऑफ गायरेशन, ये पॉइंट क्लियर करते हैं यहाँ पर। नाउ फर्स्ट कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप। ओके, इरेगुलर शेप है, मास डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं है। लेट दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दैट बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस सेंस। ठीक है, नाउ कंसीडर पार्टिकल m1 situated at distance r1, particle m2 situated at distance r2, ठीक है, थर्ड पार्टिकल m3 situated at distance r3 up to nth particle, इसका डिस्टेंस होगा rn। so this rigid body consists of n number of particles। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इज इक्वल टू समेशन mi ri² where I is equal to 1 to n। let this is इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर m1 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1², m2 पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m2 r2², m3 r3² अप टू mn rn²। फॉर एग्जांपल इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 100 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस रिजिड बॉडी इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल पार्टिकल। इस रिजिड बॉडी को हम रिप्लेस करते हैं बाय अ सिंगल पार्टिकल। लेट दिस रिजिड बॉडी हैज मास m। तो सिंगल पार्टिकल का मास कितना होगा? m, सेंटर ऑफ मास, राइट, because center of mass मतलब a point at which the total mass of the rigid body is supposed to be concentrated। अब ये सिंगल पॉइंट हम ऐसे डिस्टेंस पर रखते हैं कि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू मास कितना है m, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन k²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब if rigid body is replaced by single particle equivalent to center of mass, और center of mass को हम ऐसे डिस्टेंस पर रखते हैं जहां पर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम हो जाए। ओके, सो दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां से देखिए k² इज इक्वल टू I अपॉन m, therefore k इज इक्वल टू रूट I अपॉन m। So this is the formula for radius of gyration। अब ये डिस्टेंस है तो उसका SI यूनिट होगा मीटर। ओके।